टू भी बचपन की मेरी सबसे पसंदीदा कहानी पे आधारित है, जिसको हम रोज़ सुबह बैठ के टीवी पर दूरदर्शन पे देखते थे, वो थी रामायण। सो एक तरह से अगर आप खुदा हाफिज़ देखें तो मेटाफोरिकली इट इज़ अबाउट अ हस्बैंड गोइंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेव हिज वाइफ, और इसलिए इस बार उनकी अग्नि परीक्षा है। तो इस बार होगी दोनों की अग्नि परीक्षा, ये सोच के ये फिल्म लिखी गई थी। जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट, नटशेल में अगर कहें तो। एंड द स्टोरी इज जस्ट इट्स बीन रिटन ऑनेस्टली फॉर व्हाट द कपल। This amazing character that you've played in Khuda Hafiz Chapter 1. So what do you have to say? यहाँ पे अब बच्चा भी है और भी जिम्मेदारियां हैं. Last time बोलना चाहूँगा जो केमिस्ट्री थी आपकी और समीर की, उसकी बड़ी सारी बातें हुई हैं. अभी क्या होने वाला है? How was the journey for you? The journey honestly has been very fulfilling, I would say. From the first part to the second part, there's a complete transformation. It's very intense. A lot of layers to Nargis. You see a lot more of what a woman deals with. Her journey and her relationship, how it changes after something so big happens in your life. From that to how courageous she becomes, the rare combination of innocence and courage is something that people will see and everyone will be able to relate to. Well, I'm sure ऐसा ही होगा and congratulations on this. अभी से बोल दे रहा हूँ मैं आपको. And भाई क्या कर रहे हैं? Like ठान लिया था शुरू में ही और खुदा हाफिज 1 आई थी. अब यहाँ अग्नि परीक्षा ऑडियंस की होने वाली है कि कैसे मतलब जल्द से जल्द थिएटर्स तक पहुंच जाए. What do you have to say on this? जो यहाँ पे आए थैंक यू वेरी मच. बहुत गर्मी है, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले मैं शुरुआत करूं, मेरे 2 को एक्टर हैं जो पता नहीं कहीं गायब हैं, उनको आगे वाली रो में होना चाहिए. साद. Ladies and gentlemen, that's Vidyut Jamwal for you. A wonderful human being, of course. दूसरी बात, जब मौन व्रत चल रहा था किन 2 की घंटियां बजी थी. हम सब डिस्ट्रैक्ट हो गए थे. So first things first, thank you everybody for being here. Kumar ji, it's an honor. The second time to work with you, Farooq, amazing. Shivalika, I really enjoyed watching the trailer over here. And अब तो किस्मत पे सर. क्या बोलते हैं राम सर? जर्नी जैसा मैंने कहा कि not just an action superstar, emotional है पूरी जर्नी. There's thrill, of course, action है. What do you have to say on this? और खुद के लिए, mentally, physically, you're super tough. But when you are a part of this franchise, once you're done filming, उस समय क्या चलता है दिमाग में? Like कहीं ना कहीं, does it like break you थोड़ा सा emotionally, mentally? I disconnect very easily. So when I'm on the set, I'm that person. But when I leave the set, I think I have the ability. मैंने थोड़ी मेहनत तो की है इन सब चीज़ों में. निकल जाता हूँ. But कहीं थोड़ा बहुत ज़रा तो रह जाता है. It's changed my life, Khuda Hafiz, for sure. I enjoyed performing. I enjoyed getting into characters. It was not this कि मैं कमांड हूँ और सबको मार दूँगा. अलग-अलग तरीकों से. इस बार ये था कि बहुत चीज़ें करनी पड़ी. Which is amazing. I love every part of my life. So this is very fascinating. Khuda Hafiz, the way it's been going, the way we've all succeeded with it, just putting just an idea behind it, I feel very fortunate. Thank you so much and congratulations on this to the entire team. What we'll do is look at left. Left side. and we are करके एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश चल रही है अभी भी. That's the only agenda. बाकी सब तो किस्मत से हो रहा है. सोचा नहीं था when I came to Bombay that I'll be a leading man. Hoped it, but like didn't really. फिर सोचा नहीं producer, distributor, पता नहीं क्या पर अच्छा इंसान बनने की जद्दोजहद चल रही है. So I can't say anything more than this. And फारूक भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और पहले तो शुक्रिया कि आपने एक्शन स्टार से एक इमोशनल स्टार जो हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया है. भाई को मतलब इंडिया का क्या वर्ल्ड में रैंक करते हैं एक्शन के नाम पे, और इमोशन पे जब बारी आई तो नहीं, शुक्रिया आपका कि आप ऐसा कह रहे हैं.
हाँ, बट कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है वो जुगलबंदी ही होती है। हम कोई भी चीज़ एकांत में अकेले बैठ के एक हद तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आपको जुगलबंदी चाहिए होती है। जैसे एक संगीतकार की उसके म्यूज़िक और उसके सिंगर के साथ होती है, तो वही हमारी जुगलबंदी रही है। जो आपने ये पार्ट कहा कि आप लोगों को एक इमोशनल अवतार दिख रहा है, तो वो सारे इमोशंस इनमें थे। और ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि बिल्कुल पानी बन गए जब वो उस रोल को अप्रोच कर रहे थे। और इससे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, तो हाँ, बहुत मेहनत गई है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी था सेट पे, जब इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे विद्युत के, ही ऑलमोस्ट फेंटेड मतलब वो 10 सेकंड के लिए फेंट हो गए थे, क्योंकि वो सीन का भाव ऐसा था, उसमें इमोशन वो था। तो कहीं ना कहीं तो एक्टर को अपने अंदर अपने जो इंसान की जो गहराई होती है उसमें से भी निकालना होता है, और उसको दूसरा हिस्सा अपनी कहानी से, लिखे हुए अल्फाजों से। वैसे तो काला अक्षर ही है पेपर पे हर अक्षर, बट उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे जाहिर करते हैं, तो कहीं आपको अपने अंदर से भी लेनी होती है चीज़। और जहाँ तक विद्युत और मेरे, जो आप कह रहे हैं हिट जोड़ी सलामत रहे, बट हाँ, ये एक जुगलबंदी का प्रोसेस है। हम दोनों जब क्रिएट करते हैं सेट पे या जब सीन्स को डिस्कस करते हैं, वी आर प्योरली आर्टिस्ट। हम बिल्कुल एज आर्टिस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं कि इस कहानी में, इस सीन में, इस अल्फाज में सच्चाई कैसे जाहिर की जाए ऑडियंस को। तो वो सच्चाई ढूंढने की कोशिश होती है सबकी, कि सच कैसी लगे बात ना आपको इस फिल्म की। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। भाई आपने ठीक है, पूरा शिजरा दे दिया आपको। विद्युत भाई He's described it very well. पहले सुना होता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ करना है, या इस डायरेक्टर के साथ करना है, इसके साथ करना है, तो उसके साथ करना है, तो आप सब चीज़ें कोशिश कर लेते हैं। Then later you realize the only thing you need to do is find your own tribe. आपकी सोच के लोग, या जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक होते हैं बहुत बड़े लोग, एक और होते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं सोच के। I think that's the tribe you find, and I found the tribe in Farooq also. मेरा सवाल विद्युत से है। विद्युत, दिस इज अमित हियर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। 10 साल कंप्लीट। अगर इस बात को एरोगेंट ना समझें और समझें मैं क्या बोल रहा हूँ, एक समय होता है कि अब यू लुक अप टू पीपल, यू वांट टू बी लाइक दिस, दैट, एंड देन देयर इज अ टाइम व्हेन पीपल आर लुकिंग अप टू यू एंड यू फील रिस्पॉन्सिबल, यू क्रिएट योर ओन थिंग्स, यू फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम विद इन यू। सो मैं इस समय आई एम लुकिंग अप टू व्हाट आई वांट टू डू बेटर, हाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया, आवर फिल्म्स, एंड दैट्स द एंडेवर। बहुत रहते हैं। हाँ, हमारे लिए ये बहुत ही पेचीदा चीज़ थी कि कोविड के दौरान हम लोग शूट कर रहे थे, और ये ऊपर वाले का मेहर है, ऊपर वाले की करम है कि लखनऊ के 50 दिन के स्केड्यूल में हमारे किसी यूनिट मेंबर को कोविड नहीं हुआ, और सब लोग सुरक्षित वापस घर आए, कोई भी बीमार नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल नहीं गया। तो ये अब हमारी हैसियत से तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोविड को? तो कहीं मुझे, विद्युत को, हम सबको हमने बातें की हैं इस बारे में, शिवालिका, हम सब ने बातें की हैं कि ये जेन्युइनली ऊपर वाले का करम है कि हम सब सही सलामत वो शूट को कंप्लीट कर पाए। चैलेंजेस बहुत थे, लोकेशन सारी लाइव लोकेशंस हैं इस फिल्म में, कोई सेट्स नहीं है, ऐसा कुछ बनावटी नहीं है, सब कुछ बड़ी रियल तरीके से शूट किया गया है, लाइव लोकेशंस में किया गया है। एक्शन हो या सारे सीन्स हो, जो कुछ भी हो, तो वो इस फिल्म को एक सच्चाई जाहिर करने के लिए उसको सच्ची तरीके से शूट किया गया है, विदाउट एनी गिमिक्री टू इट। दैट्स ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क। चैलेंजिंग तो एक्टर्स के लिए है, वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे यूजुअली हीरोइंस का होता है ब्लैक एंड वाइट, वैसा नहीं है, ना ही विद्युत का है कैरेक्टर। इनके दोनों कैरेक्टर्स जब आप फिल्म देखेंगे आपको एक्चुअली दिखेगा कि ये फिल्म के बिगनिंग में कुछ लोगों से आप मिली, लेकिन फिल्म ख़त्म होने होते तक ये लोग कुछ और बन गए। इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है फिल्म में, उसका प्रभाव से उन कैरेक्टर्स के ऊपर चेंज आता है। सो इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग टू वर्क with the actors in live circumstances. All the other actors also who are here. There's Debendu Bhai, there's Danish Bhai, there's Rukhsar, Saad, Shiba Ji, the experience I had with her also again.
इट वॉज वेरी टफ फॉर हर टू इंटरप्रेट द रोल. आपने जो ट्रेलर में उनका कैरेक्टर देखा है, आपने उनको कभी वैसे देखा नहीं होगा. सारे ही कैरेक्टर्स लेयर्ड हैं, तो सेट पे ये सब चैलेंजेस तो रहते ही हैं. So But- how different it was from chapter 1, like filming chapter 1, how difficult and different it was? चैलेंजिंग दोनों फिल्में थी. वो पूरी फिल्म भी अब्रॉड शूट हुई थी उज़्बेकिस्तान में, वो भी आप लोगों ने देखी है. और इस फिल्म में भी चैलेंजेस तो ये थे कि ये कहानी थोड़ी और ज़्यादा ब्रेवर है पिछली बार से. इट्स अ मोर ब्रेव स्टोरी टू टेल इन अ नटशेल. Thank सो you, दैट्स sir. द चैलेंज. Thank थैंक you. यू. जो अपनी बीवी और बेटी से प्यार करते हैं वो तो ज़रूर पसंद करेंगे. तो मैं सच्ची बात है. If you feel for your child or your wife, you will watch it. Simple. For your brother, your sister. It's a story, a true story was the first part. सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमने फर्स्ट पार्ट की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी और कुमार जी आ गए और कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट का प्लान करते हैं, अभी हिट है ये. कुमार जी ऐसे ही हैं. सो मैंने फारूक को बोला कि कुमार जी बोल रहे हैं. सो इसे नहीं विद्युत नहीं, कुछ और करेंगे कुमार जी के साथ. थोड़े दिन बाद मुझे फारूक का फ़ोन आया, रात के समय था उस दिन. ही सेड या विद्युत, आई हैव आइडिया, इट्स बीन बॉदरिंग मी. पहला हिस्सा था वो हकीकत की स्टोरी थी जहाँ पे पति अपनी बीवी को वापस लेके आ जाता है. पिक्चर खत्म, हैप्पी एंडिंग. बट ही वाज लाइक, आई एम नॉट इन टच विद द फैमिली, बट रियली व्हाट आई नो इज दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. मतलब बीवी तो आ गई, पति ने बहुत बहादुरी का काम किया, मगर जब भी वो रोड पे जाती है लोग बोलते हैं इसका बलात्कार हुआ था. एंड इट्स कॉमन. शी वर्क्स इन एन ऑफिस, एवरीबडी नोज, दे गिव हर रिस्पेक्ट व्हिच शी डजंट रियली नीड दैट पिटी. So when he said this to me, I was like, wow, we should do this. And that's when just the thoughts started happening. And I think ये journey है, बहुत मज़ेदार थी. इसी को अग्नि परीक्षा कहा है इन्होंने. दूसरा एक सवाल है विद्युत की, फिल्म की जो एक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग. मतलब हमने जितने भी वर्ल्ड सिनेमा देखा या इंटरनेशनल सिनेमा है उस कैलिबर की है. तो उस एक्शन सीक्वेंस के बारे में, एक्शन सीन के जब आप शूट कर रहे थे उसका कोई वाक़या सुनाना चाहेंगे? अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती. फारूक कुछ बोलो ना. एक्शन इस फिल्म का, जैसा विद्युत यूजुअली एक्चुअली लोगों को चैप्टर 1 में भी और इस चैप्टर में भी, चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा में शायद अच्छी बात ये लग रही है या लगेगी कि यूजुअली विद्युत जाने जाते हैं बहुत सारा हाई ऑक्टेन स्टंट बेस्ड एक्शन बहुत किया है इन्होंने, बहुत करते हैं. ये एक्शन जो है ये इमोशनल एक्शन है, तो इसलिए इसके एक्शन का तरीका, इसका ढंग, इनफैक्ट विद्युत के लिए चैलेंज ये रहा है कि वो कैसे भूल जाएं वो सारी पिछली चीज़ें और एक नए अवतार से एक्शन करे, जो इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है. और उसमें सिर्फ एक्शन की बात नहीं होती, उसमें कैरेक्टर क्या है उस एक्शन के पीछे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसलिए इस फिल्म का एक्शन काफ़ी इमोशनल है, जो बात लोगों को अच्छी लगती है. और बहुत टफ रहा है इनके लिए, तो बहुत ज़्यादा टफ रहा है क्योंकि सारा एक्शन लाइव हुआ है. कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई स्टंट डबल नहीं है, रियल लोकेशंस में हुआ है, असली बारिश में हुआ है, ज़मीन पे हुआ है. मतलब देयर इज़ नो, ये जैसे एक्शन को यूजुअली पैडिंग करके सब चीज़ें करके करते हैं, ये एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रॉ तरीके से किया गया. वो हमेशा किसी भी एक्टर के लिए, जो कोई भी एक्शन में इन्वॉल्व है, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है. एक और अच्छी बात यह है इनकी, क्योंकि इनके तजुर्बे की वजह से थैंकफुली एक्शन की शूट के दौरान भी किसी की इंजरी नहीं हुई. तो ये अगेन अच्छी बात है, जिसका ये भी बहुत ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए. एक स्टंट में किसी की इंजरी हो जाती है तो कभी कभी उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है. कभी शोल्डर ख़राब हो जाता है, कभी पैर. एक्शन इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू, इट्स वेरी वेरी सीरियस बिजनेस and you have to approach it with a lot of technical specification and very professionally and very specifically. So in that also it's all about Vidyut and me coming together, putting all our ideas in. And just to let you know, इस बार फिल्म में इन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ भी किया है एक सीक्वेंस के लिए, इजिप्ट के खासकर क्लाइमैक्स के लिए. कुमार जी पहले बोल रहे थे कि इजिप्ट में कुछ हो गया था हमारे, बेसिकली डीओपी थी जो थे वो बीमार पड़ गए थे. हमारा एक एक्शन डायरेक्टर था, वो हांगकांग में क्वारंटाइन में, उसे रोक लिया. हम सब इजिप्ट पहुंचे हुए थे, हमारे पास एक्शन डायरेक्टर नहीं, एक्शन कोरियोग्राफर नहीं, हमारा डीओपी हॉस्पिटल में था.
तो बहुत चैलेंजिंग था। तो विद्युत और हम साथ में मिल के फिर हमने कहा ठीक है, खुद शूट करते हैं, खुद कोरियोग्राफ करते हैं। अब इजिप्ट में हैं ऑलरेडी, अब तो करना ही है, तो ठीक से करके आते हैं। वही आपने देखा है, होपफुली आप लोगों को पसंद भी आए। रियली इज, पहले भाग में भी यही था कि एक कॉमन मैन की स्टोरी है। फिर मैंने फारूक से पूछा कॉमन मैन कौन होता है, सब तो कॉमन ही है। सो ही मेंट समबडी हु इज नॉट फॉट एवर इन हिज लाइफ, बट मजबूरन लड़ना पड़ा। हम जब सेट पे थे, बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट, आई रिमेंबर मुझे सिर्फ ये दिक्कत होती थी कि जब भी कोई अटैक करता था मैं नेचुरली ये करता था या ये करता था, बट कॉमन मैन तो नहीं करेगा। सो मुझे सीखना पड़ा, जब कुछ गिरता है ना। So for me to be untrained was the most difficult thing, and I promise you I had more fun. I learned so much about imbalance. बहुत कुछ सीखा मैंने एक non-trained, as a common non-trained martial artist play करके। मुझे कभी देश के लिए बुलाते हैं, कभी बीवी भाग जाती है, कभी बच्ची गायब हो जाती है, उनके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। So now the people I'm meeting are the ones who like little light-hearted things, so I'm enjoying reading, enjoying working on things which are comical. I enjoy that part. Yeah, I'm Hemant Sanghani, Damkham Media. Shivalika. So when something like this happens, I think it's a very natural emotion that anybody would feel. It's something that I've not really seen anything like that in my life, even in immediate family. So for me, it was mostly on what I could read, what I could research. I have sat with Farooq sir and I have actually gone through each and every scene on what this character would do. Honestly, Nargis is again somebody who does not show a lot of emotion. But in this film, you'll see a lot more. So the way you mentioned that when your kid goes through something like that, I think a lot of people have dealt with this. So they will be able to relate to this. I think they'll easily be able to relate to what my character has felt and what I have emoted. We always fear for our loved ones, no? हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब किसी अपने के बारे में फेयर करते हैं या रोज़ फिक्र करते हैं। तो ये चीज़ें तो बड़ी इंसानी हैं और नॉर्मल हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि दोनों विद्युत और शिवालिका को कहीं अपने अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें टोटली पड़ी हैं इस कैरेक्टर के लिए। बहुत सारा अंदर भी खोजना पड़ा है, क्योंकि ये ऐसी फिल्म नहीं है कि आप सेट पे आ जाएं और आप सीन कर दें। आपको उसकी तह के अंदर जाना पड़ेगा उसको बखूबी निभाने के लिए, ताकि ऑडियंस को पसंद आए। विद्युत के लिए भी सेम चीज़। There were actually days that honestly I've not even spoken to family, that I was so much into character. When we have met on set, we have been so much in our character that we've actually not spoken on set. जब सेट पे सीन में इन दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये बात नहीं करती। मैं बात कर रहा था। So Vidyut, how did you manage? Because your action is inbuilt in you. You're basically action oriented. But managing and balancing this emotional sequences. सर फिल्मों में एक्शन करने के अलावा मैं रोड पे भी बहुत लड़ता था पहले से, आदत है। कोई दोस्त को कोई कुछ बोल दे तो बस अटैक। For me to get into this character, to fight for somebody I love was not really so difficult. थोड़ा it's a bit arduous because you have to get into it, पर उसी में रहना पड़ता है सारे दिन, गम में रहने का आपको, you have to train yourself. वो मुश्किल पार्ट है, but to fight for somebody it comes naturally to me, somebody I love. यहाँ पे तो बीवी और बच्चे का सवाल था। We'll take 2 more questions, right? आखिरी के 2 सवाल। जी। Guys, we love the trailer. My question is to Farooq sir. Of course. नहीं, मेरा अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं सर, कड़क लग रहा है ना? बहुत बढ़िया है ना? हाँ। 1 भी पसंद आया ना? जी। अभी एक और डायमेंशन देखिए ना इनका। देखिए ये आप लोग इस चीज में अटक गए हैं कि विद्युत एक एक्शन स्टार हैं। अच्छा है, यकीन रखना उसको। मैं उनको थोड़ा उस दायरे से और ज्यादा देखता हूँ शायद मैं, क्योंकि पर्सनली जानता हूँ, आई नो हु ही इज एज अ पर्सन। तो मुझे और बहुत सारे पहलू इनमें दिखते हैं।
वही सारा इमोशन यहाँ दिखता है. He is a very emotional person. You just can't see it because you see the image that you see on screen, but I know the person behind that image, so then I can take a lot more from his personality to interpret it into the film. और सर म्यूजिक की बात की जाए तो जान बन गए वाज अ वेरी हिट नंबर फ्रॉम द चैप्टर 1, तो चैप्टर 2 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एल्बम? जी, ये अच्छा सवाल था. तो इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत बहुत स्पेशल है हम सब के लिए. खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के गाने आपको पहले से ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और जान बन गए का आपको बखूबी जवाब मिलेगा. मेरे साथ इस वक्त ऑडियंस में हमारे साथ क्रू में मेरे बहुत ही चहेते, बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक माइस्ट्रो मिथुन बैठे हुए हैं, जिन्होंने जान बन गए क्रिएट किया. और मिथुन के साथ साथ जान बन गए की जान, वो आवाज़ विशाल मिश्रा की, वो भी साथ में बैठे हुए हैं. तो इस बार एक्चुअली आई फील कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि कबीर सिंह के बाद, कबीर सिंह के म्यूज़िक के बाद मिथुन और विशाल मिश्रा फिर से साथ आ रहे हैं खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के लिए. और आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाला है म्यूज़िक. मिथुन ने ऑफ कोर्स जो ट्रैक क्रिएट किया है उसकी आज हम आप लोग को एक सरप्राइज झलक देंगे. विशाल ने भी 2 गाने बनाए हैं. एक और गाना है शब्बीर अहमद, जिन्होंने गाना एक और चौथा बनाया है फिल्म का. बट यू आर गोइंग टू लव द म्यूजिक, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इट. वाओ. वन लास्ट. हाँ, इनको लगता है मैं घर लेके जाता हूँ. मैं घर जाता हूँ और अपनी बेटी को ढूंढता हूँ, मेरी बेटी कहाँ है. मैम एक प्रोसेस है ये. मैं जब इंटरव्यू सुनता था एक्टर्स के और मैं सुनता था वो क्या बोलते हैं, समझ सब आती थी, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंट इट, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. जब मैं वहाँ होता हूँ तो बहुत गंभीर हो जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं बाहर निकलता हूँ मुझे बहुत मजे आते हैं. वी नेवर यूज्ड टू स्पीक टू ईच अदर ऑन द सेट out of respect that she's in character, I'm in character. But the moment it got over, we were like, hello, क्या पहनना है कल का? कुछ नहीं, shooting है. So मैम थोड़ा अलग है मेरा process. When I'm there, I'm 100% there. They're both very disciplined. Nobody uses their phones on set, etc. So the discipline on set is discipline very का क्या लेना देना है भाई? ऐसे थोड़ी रूल मत बनाओ ऐसे. good. Distraction से बचना. थैंक यू सो मच. बिल्कुल 3 आएगा, डेफिनेट आएगा, 100% आएगा. उसकी जो झलक है आपको पिक्चर जब देखेंगे इसके लास्ट सीन में आपको मिल जाएगी. तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर 3 क्या होगा. अच्छा, मुझे बोला गया था कुछ कोरोना के लिए भी बोलना है, सेफ्टी के लिए. कौन बोलेगा? नहीं, मुझसे तो अलग बात है ना सर. मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या सर, लाइक प्लीज फॉलो कोरोना प्रोटोकॉल्स. रियली आई मीन इट. आई नो पीपल हु आर गेटिंग अनवेल, ये बताया गया है, बट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं उनको थोड़ी सी खांसी हो जाती है, उनको लगता है कोरोना, उस वहम में मत पड़ना प्लीज. कई बारिशें भी आने वाली है, हो सकता है कॉफ हो जाए यार, बट बी केयरफुल. जी आशीष जी. कुमार सर, विजुअल भाई दोनों से पूछना चाह रहा हूँ, आजकल ना साउथ फिल्म्स, नॉर्थ हिंदी फिल्म्स, ये सब का एक बैगेज जो था खत्म हो गया है, पैन इंडिया स्टार वाला. विद्युत, पहले ही आप पैन इंडिया स्टार हो, साउथ में भी आप काम कर रहे थे, हिंदी फिल्म में भी काम कर रहे थे. इस जो ये बाउंड्री खत्म हुई है उसको कैसे देखते हो? और आपकी ये जो फिल्म है, मुझे लगता है ये पैन इंडिया फिल्म है, ये दूसरी भाषाओं में भी आप रिलीज करोगे. कुमार सर, आप दोनों बताना चाहोगे? फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है चीज़ों की, और अपने पहले भी प्लान नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली जब पार्ट 3 बनेगी वो पैन इंडिया ऑल लैंग्वेज में होगी. बंदे 3 में फंसे हुए. सवाल ये था आपका, पैन इंडिया, यू आर ऑलरेडी अ पैन इंडिया स्टार. साउथ क्या बात कर रहे हो? मैं काम करके भूल जाता हूँ ऐसे. It's the same. I can't see the difference. मैं एक फौजी का बच्चा हूँ. जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग थी तो चेन्नई रेजिमेंट थी वहाँ पे. मेरे लिए सब सेम है, हिंदी फिल्म, एवरीथिंग इज द सेम. आई कांट डिफरेंशिएट. थैंक यू सो मच. एंड जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है सर, मैं बता दूं आप लोगों को क्रेडिट जाता है, जो सिक्योरिटी टीम है ना हमारी यहाँ पे, ये आज पठानी में है, और सर एकदम ऐसे सब ऐसे स्लोमो में चल रहे हैं सर. एवरीबॉडी इज लाइक अंदर नहीं. गाने का नाम है छैया में, जो मिथुन ने लिखा है, कंपोज किया है अपनी रूह से. तो
शब्द प्लीज़ मिथुन कहें और आपकी इजाज़त से फिर वो गाना शेयर किया जाए। आई थिंक मैं सभी लोगों को नमस्कार, यही बोलना चाहूँगा कि खुदा हाफिज़ एक सोच है। जैसे फारूक ने कबीर सिंह का जिक्र किया, फ्रेंचाइज वर्ड भी आई थिंक राम ने शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया। आई थिंक फ्रेंचाइज वर्ड क्रिएटिव लोगों के लिए वो एक सोच है, एक एनर्जी है। जैसे आशिकी 2 का म्यूजिक जब किया था मैंने, तो उसके पीछे भी एक सोच थी। कबीर सिंह में मेरे साथ विशाल भी थे और उसके पीछे भी एक सोच थी, एक दुनिया बनाते हम लोग। और मुझे लगता है खुदा हाफिज़ अपने आप में एक दुनिया है। फारूक साहब की अपनी एक सोच है। हम जब स्टूडियो में देखिए आजकल लोग बात करते हैं कि संगीत में जो है सच्चाई नहीं मिलती या उसका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो ख़त्म हो रहा है। मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र होता है कि हम जब स्टूडियो में मिलते हैं, मैं और फारूक, तो हम सिर्फ संगीत की बात करते हैं। हम ना किसी अक्षरों की बात करें, ना अंकों की बात करते हैं, ना नंबर्स की बात करते हैं, ना व्यूज़ की बात करते हैं। हमने कभी की नहीं, हमने सिर्फ म्यूज़िक की बात की। और यही कोशिश होती है कि सच्चे दिल से जो अच्छी मेलोडीज़ हो, अच्छी पोइट्री हो, वो लोगों तक लेकर जाए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुमार जी का भी, जी का, जो हमको करने का खुली छूट देते हैं। तो मुझे लगता है कि खुदा हाफिज़ अपने आप में एक ज़मीन है। और जैसे जान बन गए का जिक्र भी हुआ, जब वो गाना रिलीज़ हुआ उस वक्त बहुत सारे क्या कहते हैं थ्योरीज मिल रहे थे कि अभी नहीं होना चाहिए रिलीज़, OTT पे फिल्म होगी, कैसे करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा संगीत जो होता है वो अपना रास्ता बना ही लेता है। और इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फारूक के साथ और विद्युत के साथ भी मुझे लगता है मेरा एक ज़ाती कनेक्शन है। हम कहीं ना कहीं एक थ्योरी शेयर करते हैं, एक बिलीफ सिस्टम शेयर करते हैं। और मुझे लगता है वही सच्चाई जो है म्यूज़िक में बाहर निकल के आएगी। सो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। विशाल के लिरिक्स के बारे में क्या बताऊँ? एवरीथिंग आई लव, उर्दू, हिंदी। So एक झलक just for the audiences, not from a PR marketing standpoint of view, but just as human beings, we all like music. We just wanted to hear a झलक of छैया में, if we can play that please. गाना ऑफिशियली लॉन्च होगा 10 तारीख को, ये वाला गाना छैया में, चैप्टर 2 का पहला गाना। बट चेक या हाय एवरीबॉडी, हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब बहुत सेहतमंद हो। भाई मुझे ऐसा लगता है कि संगीत का मतलब ही है वो गीत जो संग में हो, इसीलिए उसे संगीत कहते हैं, क्योंकि इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम जान बन गए गा रहे थे, बहुत ज़्यादा कोविड था, एंड मिथुन सर कॉल्ड मी एंड ही सेड कि एक गाना है विच इज़ वेरी रूटेड एंड आई वांट यू टू हियर इट एंड सिंग इट। और वो बहुत मैजिकली हुआ। और इस बार जब मैं और फारूक भाई जैम करना जब हमने शुरू किया, तो संगीत मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। जब संगीत ऑडियंसेस तक पहुंचता है तो क्या वो उतना ही ऑनेस्ट है जब उसका सोर्स फूटता है आपके अंदर, क्या ही उतना ही ऑनेस्टी से ऑडियंस तक पहुंच पा रहा है या नहीं। एंड आई थिंक ये वाहिद ऐसा एल्बम है, चाहे वो छैया में हो या हमारे गाने हो या शब्बीर के गाने हो, मुझे लगता है जिस इंटेंशन से इसका सोर्स शुरू हुआ उसी इंटेंशन से आप तक पहुंच रहे हैं। आई थिंक इट्स रीचिंग इन इट्स मोस्ट ऑनेस्ट फॉर्म टू यू, एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेस्ड फिल्म। इट वाज लवली टू कोलैबोरेट ऑन द फिल्म एंड आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत सारे गाने आते जाते रहते हैं, पर ये वाहिद ऐसी फिल्म है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। Awesome. So can we just listen to a झलक of आजा वे please? बाहर आएंगे आप? हमने एक्शन की है, ये सब लोगों ने 20-20 साल थिएटर किया है। सुनो, ये देखिए, सुपरलेटिव एक्टर, लाइक ग्रेट रिस्पेक्ट। मगर सर बताइए, इमोशन डालना पड़ता है कि नहीं एक्शन में? प्लीज आप बताइएगा। बिल्कुल डालना पड़ता है इमोशन, इमोशन के बिना सकती है। इमोशन है, इमोशन से कनेक्ट करते हैं हम 100%। So it's amazing team.